Hey guys, how are you? I hope you are doing great. So this is the playlist in which I am going to discuss something about previous year AFCAT questions and model question paper which is being issued by AFCAT. So before going further, please don't hesitate to contact me in the comment box. I have given my personal WhatsApp number in the description, so please don't hesitate to contact me personally even. Alright, and also I have given the PDF of the question paper. You can appreciate our hard work by clicking the subscribe button and sharing it with most of the people who are defense aspirant so that they can also solve and they can also clear it. So in this video we are going to discuss about today we are going to solve AFCAT 2 2016. ठीक है. So the 51st question is like this. ये मेन पेपर है. ठीक है, ये मेन पेपर है. Alright. So the 51st question is like this. A worker may claim rupees 1.5 for each kilometer which he travels by taxi and 50 paise for each kilometer he drives his own car. If in 1 week he claimed rupees 50 for traveling 80 kilometer, how many kilometers did he travel by taxi? ठीक है. So ये question है स्पीड टाइम डिस्टेंस का. ठीक है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है. ठीक है. सो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट x एंड रिमेनिंग कितना है 80 माइनस एक्स. ठीक है, लेट x एंड 80 माइनस एक्स किलोमीटर आर द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैवलिंग बाय टैक्सी एंड कार रेस्पेक्टिवली. ठीक है, कार रेस्पेक्टिवली सबसे पहले हमने एज्यूम किया. ठीक है, रेस्पेक्टिवली. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 रुपीज चार्ज करता है वो टैक्सी से ड्राइव करने के लिए. ठीक है, सो दैट इज 1.5 प्लस 0.50 जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो चार्ज करता है बाय कार. ठीक है, सो और उसका टोटल जो उसने दिया है वो 50 है. ठीक है, सो हम इसको सॉल्व करेंगे. 1.5x प्लस 0.5 इंटू 80 becomes 40 minus 0.5x is equals to 50. So it becomes 1x plus 40 is equals to 50. So x comes out to be 50 minus 40 is 10. ठीक है, so x is 10 kilometer. Alright, so answer is 10. So this is 52nd question which says is in an examination a student was asked to find 3 by 14th of a certain number. By mistake he found 3 by 4 of it. His answer was 150 more than the correct answer. Find the number. तो ये somewhat simplification का क्वेश्चन लगता है मेरे को. ठीक है, simplification का क्वेश्चन है. ठीक है, so let us see how to approach this question. Now let the required number हम सबसे पहले assume करेंगे. Let the रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स. ठीक है, एक्स एज्यूम किया हमने. ठीक है, ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट सेज इज दैट हिज आंसर वाज 150 मोर देन द करेक्ट आंसर. सो द डिफरेंस जो है डिफरेंस 3x बाय 4 माइनस 3x बाय 14 उसका डिफरेंस जो है 150 है. ठीक है, इसको ऐसे अप्रोच करना है. ठीक है, नाउ विल सॉल्व फॉर दिस. सो क्या आएगा कि 21x माइनस 6x बाय 28 क्योंकि 28 इज द एलसीएम ऑफ 14 एंड 4. ठीक है, एंड देन इट इज 150. ठीक है, नाउ 21x माइनस 6x इज 15x इज इक्वल टू 150 इंटू 28. सो 15 10s सो x कम्स आउट टू बी 280. ठीक है, सो द नंबर इज 280. ऑलराइट, सो द आंसर इज 280. So this is the 53rd question which says is an amount of 735 rupees was divided between A, B and C. If each of them had received 25 rupees less, their shares would have been in the ratio 1:3:2. The money received by C was. ठीक है, so ये simplification का question है. ठीक है, simplification का question है. So let us see how to approach this question. So सबसे पहले let the ratio be x. ठीक है, सबसे पहले हमने ये assume कर लिया. ठीक है, नाउ इफ each of them had received
had received 25 rupees less then total money would be कितना होता 735 minus 75. ऑलराइट, दैट कम्स आउट टू बी 660. ठीक है, नाउ द शेयर्स वाज 1x फॉर ए, 3x फॉर बी एंड 2x फॉर सी. ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 1x प्लस 3x प्लस 2x, टोटल मनी कितना 660, तो 660. ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी 6x इज इक्वल टू 660, सो x बिकम्स 110. ठीक है, x आया हमारा 110. लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, बाय c कितना था, तो c का कितना शेयर था हमारे पास 2x, तो 2 इंटू 110 दैट कम्स आउट टू बी 220. सो 220 हमारा आया c का शेयर. बट यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हमको क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है कि इफ ईच ऑफ देम हैड रिसीव 25 लेस, अगर उनको 25 रुपीज लेस होता था तो ये रेशियो होता था. ठीक है, लेकिन अभी हमको इस 25 कम की वजह से, हमको ये रेशियो की वजह से हमको ये आंसर मिला है. ठीक है, लेकिन हमको असलियत में शेयर निकालना है. ठीक है, लेकिन उनको 25 ज्यादा ही मिला है सी को, सो 25 मुझे यहाँ प्लस करना पड़ेगा, तो इट कम्स आउट टू बी 245. सो द रियल आंसर इज डी ऑप्शन. ऑलराइट, समझ में थोड़ा सा ट्रिकी है बट सिंपल है. So this is the 54th question, which says is 20 liter of mixture contain milk and water in the ratio 5:3. If 4 liter of this mixture is replaced by 4 liter of milk, the ratio of milk to water in the new mixture would be. So this is a question of mixture and alligations. ठीक है, mixture and alligations. ठीक है, so let us see how to approach this question. Solution. So सबसे पहले quantity of mixture कितना दिया हमको, मिक्सचर इज 20 लीटर. ठीक है, दैट इज मिल्क इज टू वाटर भी कितना दिया हमको 5:3. सो टोटल कितना है अपने पास मिक्सचर इन, टोटल मिक्सचर इन रेशियो कितना हो जाएगा, वो रेशियो इज 5 + 3 दैट इज 8. ठीक है, समझ में आया. सो नाउ देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा 5 है, इतना 5 है क्वांटिटी, टोटल 8 में से इंटू 20, सो कितना हो जाएगा ये 12.5 लीटर. ठीक है, 12.5 लीटर. ऑलराइट, सो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 3/8 इंटू 20, सो दैट कम्स आउट टू बी 7.5 लीटर. ठीक है, सिंस हमको क्या गिवन है, सिंस क्वांटिटी ऑफ मिल्क in 20 लीटर is 12.5 लीटर. ठीक है, 20 लीटर में मिल्क कितना अपना 12.5 लीटर है. ठीक है, समझ में. सो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन 4 लीटर में कितना होगा 12.5 इंटू 4 डिवाइड बाय 20. ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी 4 1 4 5 सो 5 2.5. ठीक है, 2.5 लीटर. ये यूनिटरी मेथड से सॉल्व होगा. ठीक है, सिमिलरली क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 4 लीटर ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा 1.5 लीटर. ठीक है, सो रिमेनिंग quantity of milk in mixture will be 12.5 minus 2.5 that comes out to be 10 liter. and water कितना हो जाएगा, and water is 7.5 minus 1.5 is 6 liter. ठीक है, so now according to question हमको क्या given है कि 10 plus 4 divided by 6 that is 14/6. The ratio comes out to be 7:3. Alright, समझ में. So the हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7:3, बी ऑप्शन. ठीक है. So this is the 55th question, which says is a man rows upstream a distance of 9 km or downstream a distance of 18 km, taking 3 hours each time. The speed of the boat in still water is. So speed नहीं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोट्स का है ये, बोट्स एंड स्ट्रीम्स का क्वेश्चन है. ठीक है, सो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. नाउ सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट
the speed of let the speed of boat be x kilometer per hour and boat in still water, ठीक है, still water be x kilometer per hour and speed of current be y kilometer per hour, ठीक है। नाउ हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको डाउनस्ट्रीम जाने में, डाउनस्ट्रीम मतलब x प्लस वाई जाने में उसको कितना टाइम लगता है, 9 किलोमीटर जाता है वो 3 घंटे में। सो 9, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन हमारा 9 है और उसको टाइम लगता है 3, तो x प्लस वाई बिकम्स 3, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ऑल्सो उसको डाउन, ये था अपस्ट्रीम, ठीक है, ये अपस्ट्रीम के लिए, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम के लिए, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड माइनस हो जाता है, तो x माइनस वाई बिकम्स 18 डिवाइड बाय 3, सो इट कम्स आउट टू बी 6, ठीक है। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। सो आई विल एड इक्वेशन 1 एंड 2। सो क्या मिलेगा आपको, 2x इज इक्वल्स टू 9, सो x इज 4.5। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू, आप सॉल्व करेंगे तो y आपको मिलेगा, एक्चुअली हमको y निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको x निकालना है, राइट, x बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो हमारा आंसर है 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो 4.5 मतलब 4.5, सो डी ऑप्शन, ऑलराइट। So this is the 56th question, which says is A can do a piece of work in 10 days. He works at it for 4 days and then finishes it in 9 days. In how many days A and B together can finish the work? ठीक है, so ये है work and time का question, work and time का question. So let us see how to approach this question. तो सबसे पहले A's work in 1 day कितना होता है, 1/10। सो देयरफॉर A's वर्क इन 4 days कितना हो जाएगा, 4 days इज 4 into 10, दैट इज 2 से 5, तो 2/5, ठीक है, 2/5। सो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट्स वर्क इज 1 minus 2/5, सो इट कम्स आउट टू बी 3/5, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन B finishes, सो ये जो 3/5 है, ये 3/5 B काम करता है, ठीक है। सो B finishes the work in 9 days, ठीक है। Therefore, so now B finishes the work in 9 days, ठीक है। So therefore B's work in 1 day, 1 day कितना हो जाएगा उसका, ये पार्ट है, ठीक है। सो ये 5/3 हो जाएगा, ठीक है, 5/3, ठीक है, समझ में आया। सो बीज वर्क इन 9 days, 9 डे कितना हो जाएगा, 9 into 5/3, सो इट कम्स आउट टू 15 days, ठीक है। 15 days में बी काम करता है, ठीक है, करता है या करती है, ठीक है। सो 1 day वर्क ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1/15, ठीक है, समझ में आया। सो नाउ वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई, क्योंकि दोनों के साथ कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/15, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी 30/5, सो इट इज 6 days, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन सिंपल है, ऑलराइट। सो द आंसर इज 6 days. So the 57th question is like this. A crate of mangoes contain 1 bruised mango for every 30 mangoes in the crate. If 3 out of every 4 bruised mango are considered unsaleable and there are 12 unsaleable mangoes in the crate, how many mangoes are there in the crate? ठीक है, सो ये क्वेश्चन को आप क्वेश्चन को 4 बार पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, समवॉट सिंप्लीफिकेशन का, और फिर ये क्वेश्चन आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, ठीक है क्वेश्चन। सो लेट अस सी कौन से चैप्टर से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सोल्यूशन कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। सो लेट करेंगे हम, लेट द ब्रूज्ड मैंगोज एंड अनसेलेबल मैंगोज
आर 3x एंड 4x रेस्पेक्टिवली, ठीक है, इन 30 मैंगोज, ठीक है। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x इज इक्वल टू 12, दैट इज 3x मतलब इफ 3 आउट ऑफ एवरी 4 ब्रूज्ड मैंगोज आर कंसिडर्ड अनसेलेबल, तो 3 अनसेलेबल मैंगो है एंड देर आर 12 अनसेलेबल मैंगोज, तो 3x इज इक्वल टू 12, सो 3 1 3 3 4 सो x कम्स आउट टू बी 4, ठीक है। सो समझ में आई, ये लाइन जो की है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो देयर फॉर नंबर ऑफ ब्रूज्ड मैंगोज is 4 into 4, that is 16, ठीक है। So therefore, so the number of required mangoes in crate is 16 into 30, which comes out to be 16 into 30, which comes out to be 1600, 16 is a 480. So 480 is the answer. So answer is 480. All right. So this is the 58th question, which says is a man can row 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. He can also row 40 km upstream and 55 km downstream in 13 hours. Find the rate of current. ठीक है, सो ये क्वेश्चन है बोट्स एंड स्ट्रीम्स का, ठीक है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स का। सो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट स्पीड ऑफ करंट is y kilometer per hour and speed of boat in still water is x kilometer per hour, ठीक है। Now what the question says is a man can row 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours दे रखा है उन्होंने, ठीक है। तो टाइम की इक्वेशन, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऑलराइट, सो अभी मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, तो डिस्टेंस क्या है 30, अभी स्पीड अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड कितना होता है, अपस्ट्रीम x माइनस वाई और स्पीड डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई, ठीक है। सो अभी उसको 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम लगता है, तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है x माइनस वाई प्लस, और उसको लगता है 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या है x प्लस वाई, तो कितना टाइम लगता है उसको 10 आवर्स, ठीक है। सो नाउ आई विल टेक वन अप, ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। ऑलराइट, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन कैसे होगा, ही कैन ऑल्सो रो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब 40 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, सॉरी, सो 55 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना टाइम लगता है उसको 13 आवर्स। सो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। नाउ आई सपोज 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू पी एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। नाउ आई पुट ऑल दिस इक्वेशन, सो 330 p plus 44 q is equals to 10 and 40 p plus 55 q is equals to 13, ठीक है। नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशंस, सो ये आपको आना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, ठीक है। सो आई विल इक्वेट द मैग्नीट्यूड्स बाय मल्टीप्लाइंग into 4 in the first equation and 3 in the second equation, ठीक है। So what happens is 4 3 is at 120p plus 4 4 16 17 176 q is equals to 40 and 120p is equals to 5 3 is a 15 16 q is equals to 13 3 is a 39. So I'll change the sign, so 120p से 120p cancel हो गया, तो ये हो जाएगा 11 q is equals to 1, so q comes out to be 1 by 11. Similarly p comes out to be 1 by 5, ठीक है। नाउ हमारा q क्या था, q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, सो q हमारा कितना है 1 बाई 11 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना है हमारा 11, ये मेन इक्वेशन है, ठीक है। और सिमिलरली हमारा x माइनस वाई क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज 5, ठीक है। सो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 16, सो x कम्स आउट टू बी 8 किलोमीटर पर आवर, x कम्स आउट टू बी 8 किलोमीटर पर आवर। वही y को हम y की इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे, तो हमको मिल जाएगा y की वैल्यू जो है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ में आया। सो हमको क्वेश्चन में क्या निकालना था,
तो क्वेश्चन में हमको स्पीड ऑफ करंट निकालना था. स्पीड ऑफ करंट इज 3 एंड द आंसर बिकम्स ए ऑप्शन. ऑलराइट. So this is the 59th question, which says is, how long will it take for a sum of money invested at 5% per annum at simple interest to increase its value by 40%? So ये simple interest का concept है, simple interest का. Let us see how to approach this question. So सबसे पहले solution कैसे approach करेंगे हम? सबसे पहले let करेंगे, let principal amount भी 100. ठीक है, suppose किया है हमने. ठीक है, period, time period क्या है, n दिया. ठीक है, और rate क्या given है अपने को, is 5% of SI. ठीक है. Now according to question, what question says is, how long will it take for the sum of money invested at 5% at annum to increase the value. To increase the value मतलब 100 plus 5% annum से simple interest, तो मतलब 100 into n into 5 divided by 100 to increase it 40% से वैल्यू बढ़ती है, तो मतलब 40% ज़्यादा होगा 100 का, तो मतलब 140 हुआ. ठीक है. सो ये 100 से 100 कैंसिल, 100 प्लस 5n इज इक्वल टू 100. सो 5n इज इक्वल टू, सॉरी ये 140 था, तो 40 हो जाएगा, n बिकम्स 8. सो टाइम इज 8 years. सो टाइम इज 8 years. ऑलराइट. So this is the 60th question, which says is, the mean of 50 observation was 36. It was found later that an observation 48 was wrongly taken 23. The correct new mean is. So ये averages का question है. ठीक है, averages का question है. तो let us see how solution goes. Average of 50 observation. 50 observation क्या है, 36. तो sum of 50 observation कितना हो जाएगा, ये मैंने पिछले क्वेश्चंस, पिछले मॉडल क्वेश्चन पेपर्स और मेन क्वेश्चन पेपर में बताया, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं. ठीक है, तो 36 इंटू 50 दैट कम्स आउट टू बी 1800. ठीक है. सो बट 48 वॉज रॉन्गली टेकन. ठीक है, एज 23. ठीक है. सो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस इज 48 माइनस 23 इज इक्वल टू 25. Hence, total correct value of 50 observation is 1800 plus 25 is equals to 1825. Now new mean क्या हो जाएगा, new mean is 1825 divided by 50, that comes out to be 36.5. Now ये स्टेप आपको अगर समझ में नहीं आया होगा, तो ये 48 माइनस मैंने 23 क्यों किया है, क्योंकि 48 को उससे माइनस मैंने क्यों किया है, क्योंकि 48 को हमने 23 एज्यूम कर लिया था. ठीक है, लेकिन 23 हमने ऑलरेडी ऐड किया है. ठीक है, और जो बाकी 25 था वो हमने इसमें ऐड नहीं किया था, इसलिए मैंने उसका डिफरेंस लेके ऐड कर दिया. आप 23 प्लस 25 करके देखोगे तो 48 ही आएगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द डिफरेंस. ठीक है, सो द आंसर बिकम्स 36.5, दैट इज सी ऑप्शन. ऑलराइट. So this is the 61th question, which says is, the average score of a cricketer for 10 matches is 38.9 runs. If the average of for the first 6 matches is 42, the average for the last 4 matches is. So ये average का question है. ठीक है, और थोड़ा सा जो concept है इसका आपको क्रिकेट का लगेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं. ठीक है. So the question goes, solution goes like this. The average runs of 10 matches, that is 38.9. ठीक है. Therefore total number of runs is 38.9 into 10. Why? Because average का फॉर्मूला क्या होता है कि average is equals to sum of all observation divided by total number of observation. ठीक है, सो इसके हिसाब से average into total number of observation is equals to sum आ जाता है, इसलिए total number of runs is equals to 38.9 into 10. सो कितना आ जाएगा वो, 389 runs. ठीक है, बट number of runs for the first 6 matches is 42 into 6, that is 252. ठीक है, and number of runs for last 4 matches कितना हो जाएगा, 389, जो कि हमारा टोटल रन था, माइनस फर्स्ट 6 मैचेस का, तो 252.
दैट कम्स आउट टू बी 137, ठीक है, 137 आया हमारा, ठीक है। नाउ क्या करेंगे हम कि सो द रिक्वायर्ड मीन दैट इज 137 divided by 4, that comes out to be 34.25, alright, so the हमारा आंसर क्या है 34.25, सी ऑप्शन, ठीक है। So the 62nd question is, on a certain sum the simple interest at the end of 6 1/4 years becomes 3/8 of the sum, ठीक है, the rate percentages। so simple interest का क्वेश्चन है ये, ठीक है। so सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे सिंपल सा क्वेश्चन है, let the principal amount be principal amount be P and rate is 5%, ठीक है। now according to question क्या कहता है कि according on a certain sum the simple interest at the end of 6 1/4 year, तो simple interest क्या हो जाएगा P इंटू R, क्या है R नहीं मालूम, R निकालना है, इंटू टाइम कितना है 6 1/4, मतलब 6 4 24 25/4 होल अपॉन डिवाइड बाय 100, ठीक है। कितना हो जाता है वो, यस बिकम 3/8 ऑफ द सम, 3/8 ऑफ द सम इज P, तो P से P कैंसिल, ठीक है। सो ये इंटू द 4 1 4 2 सो 25 1 25 4 सो R बिकम्स 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, 2 2 2 3 6%, ठीक है। सो द आंसर इज 6%. So the 63rd question is like this, a horse is sold at a profit of 25%. If both the CP and SP are 200 rupees less, the profit will be 5% more. The cost price is, so ये question जो है ये profit and loss का है, ठीक है, profit and loss का, ठीक है। So let us see how to approach this question. तो सबसे पहले हम क्या assume करेंगे, let the CP of horse be X and SP becomes 25% ऑफ उसको प्रॉफिट मिलता है, तो x इंटू 25% मतलब 125/100, दैट कम्स आउट टू बी 5x/4, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट सेज इज, उसको जो प्रॉफिट है वो 5% ज्यादा होता है, तो प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट इंटू होल अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको, SP माइनस CP होल अपॉन CP इंटू 100, ऑलराइट। सो 5% ज्यादा हुआ है उसको, मतलब पहले 25% था, अभी 30% हो गया, ठीक है। सो नाउ SP क्या है अपन हमारा x 5x/4, और उन्होंने क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया है कि अ हॉर्स इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% इफ बोथ द CP एंड SP आर 200 लेस, 200 लेस मतलब 5x/4 माइनस 200, ठीक है, माइनस अभी CP क्या है हमारा, CP दोनों x था CP, तो x माइनस 200, ठीक है, होल डिवाइड बाय x माइनस 200 इज इक्वल टू 30%। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको 0.5x इज इक्वल टू 600 आएगा, सो x बिकम्स 600 डिवाइड बाय 0.5, तो x इज इक्वल टू 600 अपॉन 1 2 इज 1200 rupees, alright, so the answer is 1200 rupees, alright. I have not solved this part, alright, I have not solved this part, I hope you can solve it, alright. So this is the 64th question, which says is, two trains travel in opposite direction at 36 km per hour and 45 km per hour respectively. A man sitting in slower train passes the faster train in 8 seconds. The length of the faster train is, so ये क्वेश्चन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स का है, ठीक है, बेस्ड ऑन ट्रेन्स का है, ठीक है। नाउ लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, द रिलेटिव स्पीड। द रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड, सिंस दे बोथ आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर द स्पीड विल बी एडेड अप, ऑलराइट। तो 36 प्लस 45, सो इट कम्स आउट टू बी 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ दिस इज इन किलोमीटर पर आवर और हमको 8 सेकेंड है, तो ऐसा यूनिट में लाने के लिए मुझे मीटर पर सेकेंड में लाना पड़ेगा। नाउ मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए मैं इसको 81 इंटू, मैं किलोमीटर से मीटर में जा रहा हूं, तो 5 मतलब मीटर मतलब कम में जा रहा हूं, तो 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इट कम्स आउट टू बी 22.5 मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट। नाउ एक सेकेंड में वो 22.5 मीटर ट्रैवल कर रहा है ट्रेन,
ठीक है. सो उस क्वेश्चन क्या, अ मैन सिटिंग इन स्लोअर ट्रेन पासेस द फास्टर ट्रेन इन 8 सेकेंड. तो 8 सेकेंड में कितना ट्रैवल होएगा, 8 इंटू 22.5, 8 5 40, 8 2 16, 20, 8 2 16 17 18, 180 मीटर. ठीक है. सो 180 मीटर, 180 मीटर. तो 180 मीटर इज द राइट ऑप्शन. ऑलराइट. So this is the 65th question, which says is, by selling a chair for 368 rupees, a man lost 8%. For how much should he have sold it to gain 15%? So ये profit and loss का question है, profit and loss का question है. ठीक है. So the solution is like, इसको मैं डायरेक्ट अप्रोच करूंगा. ठीक है, लेंदी मेथड नहीं अप्लाई करूंगा. सबसे पहले, by selling a chair for 368 rupees, a man lost 8%. 8% लॉस करके वो 368, तो मतलब 368 रुपीज इज 92%. ऑलराइट. सो 100% कितना हो जाएगा अपना, 100 इंटू 368, 100 इंटू 368 डिवाइड बाई 92. ठीक है, इट बिकम्स CP. ऑलराइट. नाउ ही हैज टू गेन 15%, मतलब उसको 115% पे बेचना पड़ेगा उसको. ठीक है. सो दिस इज, ठीक है, समझ में आया. तो 92 1 92, 92 4, तो CP कितना है अपना 400 रुपीज. ठीक है. अब उसको 115% पे बेचना है, तो ये अपना 100% है अपना ये. ठीक है. 100% इज 400 रुपीज. तो 115% कितना हो जाएगा, 115 इंटू 400 डिवाइड बाय 100. सो इससे इसे कैंसिल, तो इट कम्स आउट टू 460 रुपीज. ऑलराइट. सो द आंसर इज 460 रुपीज. So this is the 66th question, which says is, a train 110 meter long is running with a speed of 60 km per hour. In what time will it pass a man who is running at 6 km per hour in the direction opposite to that of train? So ये problem based on trains का question है. Problem based on trains का question है. ठीक है. So the solution is like this. सबसे पहले हमको ट्रेन की लेंथ क्या गिवन है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज 110 मीटर. ठीक है. नाउ स्पीड क्या दे रखा है, स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. नाउ मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर जो है सेकेंड्स में, तो यूनिट ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर से मैं मीटर पर सेकेंड में जा रहा हूं, तो मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. सो इट कम्स आउट टू बी 16 2/3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. आप मेरे को इसमें फ्रैक्शन में रखना पसंद है या किसी में भी रख सकता हूं, आपको जैसा रखना है रख सकते हैं. ठीक है. नाउ स्पीड ऑफ मैन क्या दे रखा है, 6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. नाउ लेट अस चेंज दिस. ऑलराइट. इट बिकम्स 50, 16 3 48 प्लस 2 50/3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो 6 किलोमीटर पर आवर. तो 6 किलोमीटर पर आवर को मैं कैसे चेंज करूं, इंटू 5/18 से. ठीक है. 6 5 30, 30/18. सो 6 3 6 5 तो 5/3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. नाउ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड वो होगा, उन दोनों का एडिशन हो जाएगा. क्यों, क्योंकि दे बोथ आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है. सॉरी, नेगेटिव सबट्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है. सो इट बिकम्स 50/3 माइनस 5/3. ये इनका स्पीड हो गया. ठीक है. नाउ हमको रिक्वायर्ड टाइम चाहिए, रिक्वायर्ड टाइम. ठीक है. रिक्वायर्ड टाइम दैट इज 50/3 माइनस 5/3 होल डिवाइड बाय, हमको, अब बेग योर पार्डन गाइस, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस क्या है, हमको क्या गिवन है, 110 डिवाइड बाय 50/3 माइनस 5/3. ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे हम अभी. 110 इंटू 3 डिवाइड बाई 50 माइनस 5 इज 50 माइनस 5. आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम सो सॉरी. हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ अ ट्रेन. मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी. ठीक है. सो यहाँ पर प्लस आएगा. सो इट कम्स आउट टू बी 110 इंटू 3 बाई 55. ठीक है. सो 55 1 55 2 सो 2 3 6. तो 6 सेकेंड जो है उसका टाइम लगेगा. ठीक है. सो टाइम इज 6 seconds. ऑलराइट. So this is the 67th question, which says is, if 3 men or 4 women can plow a field in 43 days,
इन हाउ मेनी डेज 7 men and 5 women can plow the same field. So ये क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है. तो सोल्यूशन देखो कैसे करते हैं. 3 men इज इक्वल्स टू 4 women, ये दिया है हमको, ठीक है. तो 1 man कितने के इक्वल होगा, 4/3 women के, ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड फॉर 7 men and 5 women. तो 7 men and 1 man, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल. तो 7 men किसके इक्वल होगा, 4 into 7/3, ठीक है, दैट इज 28/3 women के इक्वल होगा, ठीक है. नाउ 7 men and 5 प्लस 5 women को कितना टाइम लगेगा ये पूछा है, ठीक है. तो 7 women मतलब 28/3 women plus 5 women. So it comes out to be 28 plus 15/3, कितना है, 43/3 women, ठीक है. नाउ 1 women को 4 women को कितना टाइम लगता है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 43 डेज लगता है. 4 women को 43 डेज लगता है, ठीक है. सो 1 women को कितना टाइम लगेगा, 43/4 डेज लगेगा, ठीक है. सो देयरफॉर 43/3 women को कितना टाइम लगेगा, 43 into 43 डेज 4 women को लगता है, ठीक है. होल डिवाइड बाय 43 डिवाइड बाय 3. सो इट कम्स आउट टू बी 43 से 43 कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 into 3. सो 4 3 12 डेज, ठीक है. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप 1-2 बार क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. तो आंसर इज 12 days. Alright. So this is the 68th question, which says is a man sold 2 watches for rupees 3750 each. On one he gained 5% and on the other he lost 5%. What was his total loss as a percentage? So ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है. इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से बताऊंगा, एक कन्वेंशनल अप्रोच जो कि लेंदी है और एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा. शॉर्ट ट्रिक को अच्छे से ध्यान देना क्योंकि पहले मैं कन्वेंशनल बताऊंगा एंड देन शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा. शॉर्ट ट्रिक 2 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 लाइन का सोल्यूशन है. सो आप देखना. सबसे पहले कन्वेंशनल अप्रोच कैसे करते हैं, देखो. सबसे पहले अ मैन सोल्ड 2 वॉचेस फॉर 3750 ईच, वन गेन 105%, मतलब 105% इज ₹3750. सो 100% कितना हो जाएगा उसका, 3750 into 100 divided by 105, ठीक है. सो इट कम्स आउट टू बी 3571.42 रुपीज, ठीक है. फॉर सेकेंड 95%, मतलब उसका 5% का लॉस हुआ, तो 95% इज इक्वल टू ₹3750. सो 100% कितना हो जाएगा इसका, तो 3750 into 100 divided by 95. सो इट कम्स आउट टू बी 3947.36, ठीक है. ये उसने दोनों का बेचा, ठीक है. अभी टोटल कितना हुआ, टोटल सेलिंग प्राइस उसका कितना हुआ, टोटल सेलिंग प्राइस इज 3571.42 प्लस 3947.36, ठीक है. सो इट कम्स आउट टू बी 7518.18, ठीक है. तो उसको ऑब्वियसली, और टोटल सीपी is total cost price is 3750 plus 3750, that is 7,500 रुपीज, ठीक है. सो नाउ उसको ऑब्वियसली 7,500 में खरीदा था उसने और 7,518.18 रुपीज में बेच दिया उसने, ठीक है. तो उसको लॉस हुआ. लॉस परसेंटेज क्या आ जाएगा, इज 18.18 डिवाइडेड बाय 7,500 into 100, ठीक है. इट कम्स आउट टू बी 0.25% उसको लॉस हुआ, ठीक है. नाउ आई टीच यू द शॉर्ट ट्रिक, ठीक है. ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये हमने एरिया एंड पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट में सीखा था, ठीक है, जो कि है a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ठीक है. वेर a इज प्रॉफिट या फिर इंक्रीज, ठीक है. इंक्रीज को मैं ऐसे लिख सकता, इंक्रीज, ठीक है, और b इज इंक्रीज और डिक्रीज या और डिक्रीज, ठीक है. मतलब अभी देखो 5% का पहले इंक्रीज हुआ उसको, तो 5 a 5 हो जाएगा, a बिकम्स 5, a इज 5,
और फिर देन उसको लॉस हुआ 5 का, तो -5, लॉस मतलब -5, तो 5 प्लस ऑफ -5 प्लस 5 इंटू -5/100, सो ये 5 से 5 कैंसिल, तो -25/100, सो इट कम्स आउट टू -0.25. नाउ 0 इंडिकेट्स दैट इट इज लॉस, ठीक है, एंड 0.25%. तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूले से आपको आंसर आ गया, ठीक है. सो द आंसर इज 0.25% लॉस, दैट इज A option. All right. So here I finish the AFCAT 2 2016 main question paper. So hope to see you in next video. Bye bye. So thank you for watching the video till here. I really appreciate it. I hope every question of yours has been solved. I hope to see you in next video. Till then, Jai Hind.